Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we are doing chapter 18 of your EVS textbook. I hope you all have watched the previous videos in which I have explained the chapter. Children, in today's video we will be doing the last exercise that is given at the end of the chapter, as well as some additional exercise also, which are from the content of the chapter. जो आपके चैप्टर में से ही है और आपके चैप्टर के कंटेंट को वो कवर करेगा. कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके चैप्टर में जो कंटेंट दिया हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसी को पूरा कवर करते हैं. ठीक है, तो हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किया क्या क्या इस चैप्टर में. Children, we discussed about saving trees. We discussed about saving natural resources. We also discussed about saving natural vegetation, saving water, and saving environment from pollution. And we also discussed about global warming. All these points we discussed in this chapter, why it is important to save this thing and how we can save this thing. Why and how. Children, then we started the exercise. That first exercise was choosing the correct option from the options given. We are filling the blanks, choosing the correct options that are given. Then another exercise was related to it was true false. The next exercise was true false, and then there was some pictures which you have to identify whether it is related to good activity or bad activity. These three exercises we have already done, and in today's video we will do question answers. Children, before starting the question answers, I would like to revise you the exercises. Children, the first exercise, that is choosing the correct option, we have four such statements, four sentences. First one is Earth Day is celebrated on, and out of the three options, the correct option is 22nd April. Earth Day is celebrated on 22nd April. Then number two is smoke from vehicles makes blank dirty, and out of the three options, the correct option is air. Smoke from vehicles make air dirty. Number three, all living things need blank to breathe. All living things need air to breathe. All living things need air to breathe. Then number fourth is natural resources are water, air and soil, and all of these. Children, in this sentence, all of these is the correct option, because water, air and soil all are natural resources. Then coming to the exercise B, which is about true and false. The first one is burning of dry leaves causes pollution. This statement is true because of course we know that when we burn dry leaves, it pollutes the air. It pollutes air with its smoke. Then second one is we should not plant trees. Children, this statement is incorrect. This is false statement. In fact, we should plant more and more trees if we really want to save our planet. If we really want to save our earth, we must plant more and more trees. Then the third statement is we should be kind to animals. Children, this statement is also true. Yes, we should be kind towards all creatures, all animals. Okay, they are part of natural resource. They are part of our earth, and we should be kind towards them. Then fifth statement is we should not waste water. This statement is also true. Yes, we should not waste water. Every drop of water is very precious, and we should save water. Then exercise C. Children, here you can see some pictures. In the first picture there is bursting cracker. There is a bursting cracker,
and it is a bad activity. You have to write B because B stands for bad. Bad activity. Bursting crackers pollutes the air. It creates air pollution as well as noise pollution. Bursting crackers create air pollution as well as noise pollution. So it is a bad activity. Number 2 is leaking a tap. Children, leaking tap is also bad activity because it leads to wastage of water. And wasting water is not a good activity. So you have to write B. B for bad activity. Then we have a picture of burning dry leaves. Burning leaves. Children, this activity is also not good because burning leaves causes air pollution. So it is also a bad activity. You have to write B. The next is planting trees. Children, this one is a good activity because planting trees purifies airs. It is good for nature and it gives oxygen. So we must plant more and more tree. It is a good activity. So you have to write G. Okay. Now coming to the question answers which I discussed with you in the previous video. In the previous video I have discussed these questions. Today we are going to write the questions and answers. Okay. So let's write. Question number 1. What is global warming? What is global warming? Global warming क्या होता है? Children, global warming is the process. Global warming is the process global warming is the process that causes the Earth's temperature to rise and make the earth warmer and make the earth warmer. Okay. What is global warming? Global warming is the process that causes the earth's temperature to rise and make the earth warmer. मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और अर्थ गर्म हो जाता है. अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, राइज होने लगता है, विच मेक्स द अर्थ वार्मर. इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, ये आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का. What is global warming? Global warming is the process that causes the earth's temperature to rise and make the earth warmer. Question number 2. What things should we do to save the earth from pollution?
Children, second question is, what things should we do to save the earth from pollution? What things should we do to save the earth from pollution? मतलब अर्थ को पोल्यूशन से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? What things we can do? Children, we can do many things to save our earth from pollution. अब मैंने ये आपके साथ कल डिस्कस किया था, तो इसका आंसर हम लिखना शुरू करते हैं. देयर आर मेनी एक्टिविटीज. मैं सारा, मेरे को जितना मैक्सिमम पता होगा दैट आई विल राइट. यू कैन राइट एनी 5, एनी 4, एनी 5, एटलीस्ट 5 you should write. Okay. Following things we should do to save the earth from pollution. Following things we should do to save the earth from pollution. Pollution से अर्थ को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं लिखने जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको ऊपर वाले को इरेज करती हूँ. कुछ आंसर नीचे लिख देते हैं. नंबर 1 है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. ये 3 R's हमें याद रखने हैं. We can reduce the use of natural resource, we can reuse certain things and we can recycle certain things. ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. ठीक है. We can reuse, we can reduce, we can recycle. 3 R's are very important. This can save our earth from pollution. Then second is educate others about importance of natural resource. Educate others, दूसरों को हमें बताना है. ठीक है. Educate others about the importance and value of our natural resources. Educate others about the importance and value of our natural resources. ये दूसरों को हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके वैल्यू के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसे बचाना शुरू करें. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं प्लांटिंग मोर ट्रीज. प्लांट मोर ट्रीज. ठीक है ना. सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट है पोल्यूशन को कम करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. पोल्यूशन को हमेशा के लिए खत्म भी किया जा सकता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं. ठीक है. तो प्लांटिंग जो ट्रीज है या प्लांट मोर ट्रीज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे बाय विच वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन. वी कैन सेव द अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन. Fourth is save water. We can save water. This will also protect our earth from pollution. पानी बचाएंगे उससे भी प्रदूषण दूर होगा, उससे भी pollution दूर होगा. Then promote
promote afforestation, and reforestation. प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, मतलब बढ़ावा देना एफॉरेस्टेशन को और रिफॉरेस्टेशन को, डिफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है मैंने आपको बताया था, ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर फॉरेस्ट, नए जंगल बनाना। रिफॉरेस्टेशन, जहां पहले कभी जंगल थे वहां फिर से जंगल बनाना। तो ये दोनों चीजें हमें प्रमोट करनी चाहिए। ये दोनों चीजें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। देन 6 में हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज वेस्ट वाटर ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट। डिस्चार्ज वेस्ट only after treatment। ये पॉइंट समझे। डिस्चार्ज मतलब कोई भी कचरा है, कोई भी वेस्ट वाटर है या स्मोक है, कुछ भी है, उसको ऐसे ही नहीं एनवायरमेंट में छोड़ देना है, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कोई भी पोल्यूटेड चीज है। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें से जो टॉक्सिक चीजें होती है, जो जहरीली चीजें होती हैं, जो हार्मफुल चीजें होती हैं, उसको अलग कर देना। उसके बाद उसको डिस्चार्ज करना, उस चीज को निकालना, ये बहुत जरूरी है। डिस्चार्ज वेस्ट ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब उसके अंदर के जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो हार्मफुल चीजें हैं, उसको हटा के तब वाटर को, एयर को या जो भी वेस्ट है उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। ठीक है, और भी है लेकिन यहाँ जगह कम है इसलिए मैं क्वेश्चन को मिटा देती हूँ। क्वेश्चन तो आपको पता ही चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम सेव कर सकते हैं अर्थ को पोल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट है लेस यूज ऑफ less use of chemical fertilizers and pesticides। मतलब जो फर्टिलाइजर किसान लोग, फार्मर लोग यूज करते हैं खेतों में, जो खेत में डालने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं या कीटाणुनाशक पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, वो कम यूज करें, उसका कम से कम यूज करें, क्योंकि वो भी जो है पोल्यूशन फैलाता है। वो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये दोनों चीजें वो करता है। इसलिए कम से कम हमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। उसकी जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, मैन्योर डाला जाता है, काउ डंग से बनता है, रॉटन वेजिटेबल्स वगैरह से बनता है, उसको यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब फर्टिलाइजर्स को और पेस्टिसाइड्स को कम से कम यूज करना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा बढ़ावा देना है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें और ज्यादा बढ़ावा देना है। और क्या कर सकते हैं, एक दो और लिख देते हैं, अवॉइड यूज ऑफ plastics and polythenes। Okay, avoid use of plastics and polythene। जितना कम हो सके उतना कम हमें प्लास्टिक और पॉलिथीन यूज करना चाहिए, क्योंकि दे आर मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा पोल्यूशन ये सब चीजें भी फैलाते हैं, प्लास्टिक एंड पॉलिथीन।
एयर पोल्यूशन तो है ही है, वाटर पोल्यूशन तो है ही है, उसमें ये प्लास्टिक और पॉलिथीन और ज्यादा इस चीज को बढ़ा देते हैं, अर्थ के पोल्यूशन को बढ़ा देते हैं। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक एंड पॉलिथीन। ठीक है, प्लास्टिक और पॉलिथीन आपको यूज नहीं करना है या कम से कम करना है। तो ये हमने 9 पॉइंट्स लेके, आई हैव वन मोर पॉइंट, इसको आप देख लेते हैं। हमने क्या क्या यूज किया? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। दूसरा है एजुकेट अदर्स अबाउट इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्स। दूसरों को नेचुरल रिसोर्स के महत्व को समझाना। तीसरा है प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। चौथा है सेव वाटर, पानी बचाना, कंजर्व वाटर जिसको बोलते हैं। फिर फिफ्थ है प्रमोट एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, ये जो फॉरेस्ट वाली चीजें हैं इसको बढ़ावा देना। डिस्चार्ज वेस्ट ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट, जो गंदा जो पोल्यूटेड चीजें हैं, पोल्यूटेड वाटर, एयर, ये जो है उसको ट्रीटमेंट के बाद ही कहीं नदी नाले में छोड़ना, डिस्चार्ज करना। लेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करना। देन नंबर 8 है प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, जिसमें मैन्यूअर वगैरह यूज होता है उसको प्रमोट करना। एंड नंबर 9 है अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलिथीन, और जितना हो सके कम से कम हमें प्लास्टिक्स और पॉलिथीन को यूज करना है। ठीक है, कम से कम। देन वी कैन हैव avoid throwing waste in water bodies, मतलब किसी भी रिवर में, पॉन्ड में जो वाटर बॉडीज हैं उसमें वेस्ट नहीं डालना, चाहे वो सी हो, रिवर हो या पॉन्ड हो, इसमें वेस्ट को नहीं फेंकना, अवॉइड करना, उसमें फेंकने से हमें खुद को रोकना है। चिल्ड्रन, आई हैव गिवन यू 10 पॉइंट्स हाउ यू कैन सेव अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन। आपको इसमें से आप मैक्सिमम जितने लिख सकते हो यू कैन राइट। ठीक है, जितने पॉइंट्स आप मैक्सिमम लिख सकते हो, आप 10 चाहो तो 10 के 10 लिख सकते हो, या कोई 5 कोई 6 आप जरूर लिखना। ठीक है, ये थे हमारे 10 पॉइंट्स हाउ वी कैन सेव अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Next question is, how can we keep the water clean? How can we keep water clean? पानी को हम कैसे साफ रख सकते हैं? पानी को हम कैसे साफ रख सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि पानी साफ रहेगा? सबसे पहला तो आंसर में क्या लिखेंगे? वी शुड नॉट थ्रो एनी काइंड of waste in water bodies. वाटर बॉडी मतलब पानी वाली चीजों में, पानी वाली जगहों पर हमें किसी भी तरह का वेस्ट वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए, चाहे वो रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, सी हो, कहीं भी नहीं। वी शुड नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ वेस्ट इन वाटर बॉडीज। ठीक है, we should not bathe animals in rivers and ponds. एनिमल्स को सीधा नदी में डुबा के या पॉन्ड में डाल के नहीं नहलाना चाहिए, बाहर से ही उनको नहला दो, बाहर लेके उनको
पानी किसी चीज में देखें उनको नहला दो। डोंट बेथ एनिमल्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, इससे भी पानी जो है वो खराब होता है। ठीक है, उसके बाद है रिपेयर एनी काइंड ऑफ लीकेज in sewer pipe. Sewer pipe. क्यों सीवर पाइप्स में क्या होता है, जब सीवर पाइप में लीकेज होती है तो कभी कभी वो जो वाटर की पाइपलाइन होती है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है और वाटर को पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, सीवर जो है, सीवर जो लाइन है, सीवर की जो पाइप है वो क्या होता है, कभी कभी जो है वो वाटर के पाइप के साथ लीक होने के बाद कनेक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। तो ये चीज अवॉइड करना है। किसी भी तरह का लीकेज है, किसी भी तरह का अगर लीकेज है सीवर पाइप में तो उसे हमें तुरंत ही रिपेयर कराना चाहिए। ठीक है, जो ओके, देन इज नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन डू। ये हमारा हुआ 1 2 3, ये 3 चीजें भी हम कर रहे हैं तो हम पानी को काफी हद तक पॉल्यूट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम करेंगे तो वाटर जो है वो पॉल्यूट नहीं होगा। ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, ये थे आपके बुक के जो चैप्टर के जो पीछे दिए हुए क्वेश्चंस थे वो हैं ये जो आपके ये जो चैप्टर है इसके पीछे ये कंटेंट ये सारा दिया हुआ है। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। चंदन, ये जो पोल्यूशन वाला है, हाउ वी कैन कीप वाटर क्लीन, इसमें आप और भी बहुत सी चीजें कर सकते हो। जैसे हम वी शुड नॉट वॉश आवर क्लोथ्स और यूटेंसिल्स इन रिवर्स या वाटर बॉडीज। ऐड कर लेते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि अगर लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं। वी शुड नॉट वॉश clothes और utensils, utensils मतलब बर्तन, in rivers or other water bodies. Okay, we should not wash clothes or utensils in rivers or other water bodies. ठीक है, फिर जो डिस्चार्ज जो किया जाता है जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है, दैट शुड बी डिस्चार्ज ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट। ये हमने 4 पॉइंट्स जो लिखे हैं वो आपको उसमें ये वैसे आ जाता है। वी शुड नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ वेस्ट इन वाटर बॉडीज, इसमें भी वो चीज आ जाती है। और इफ वी हैव टू डिस्चार्ज, वी शुड डिस्चार्ज इट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। इफ वी वांट टू discharge waste water in any of the water bodies, we should discharge it only after proper treatment of the water. उसमें से जो केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो पॉइजनस केमिकल्स हैं या जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, उसको निकालने के बाद ही उसे कहीं भी डिस्चार्ज करना है। उसे चाहे आप रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हैं या किसी वेस्ट लैंड में डिस्चार्ज कर रहे हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस कि उसके अंदर का, उसमें जो उस वाटर में जो टॉक्सिक चीजें थी, जो नुकसान वाली चीजें थी, वो निकाल दी गई हों। ये इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम तरीका है जिससे कि हम वाटर को साफ कर सकते हैं, पानी को साफ रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो पानी साफ रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके बुक वाले जो थे वो हो गए। अब हमारे पास हमें करना है कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, पर वो एडिशनल क्वेश्चंस हम आज तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे ऐसे एडिशनल फिल इन द ब्लैंक्स हैं या क्वेश्चंस हैं। वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसमें एक हॉर्स का क्वेश्चन है,
फाइंड आउट विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड एंड वाई। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता करना है कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है और क्यों वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है और वो कंट्री कौन सी है। तो आप ये पता करना। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल डू सम एडिशनल क्वेश्चंस। आज हमने चैप्टर के ही क्वेश्चंस हम कर पाए, पर एडिशनल वाले हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हमने आज किए हैं प्लीज रिवाइज देम, उसको ध्यान से पढ़िए। कुछ डाउट है यू कैन क्लियर दोज डाउट्स, ठीक है। डॉट्स क्लियरली दिख नहीं रहे हैं, मैंने थोड़ा मोटा मोटा कर देती हूँ। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन आंसर्स और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।